Fine. So, guys, welcome you all. I'm sharing my screen so that I can help you understand it better, how things work when it comes to English language. So, yes, guys. So 90 डे इंग्लिश कम्युनिकेशन मास्टरी हम 90 डेज में हम कैसे इसको कम्युनिकेशन को मास्टर कर सकते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन को that's what is is the topic of this workshop. So this is our goal actually. It is not like जो आपने देखा हुआ है कि इंग्लिश सेंटर जो एक पंच लाइन डाल के रखते हैं कि learn English in 90 days. It's not going to be like that, but it is actually a goal setting which has been set by me कि एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है. And I I have done it and it is really possible. Yes, we can achieve this goal. We can master English communication in 90 days. Do you also believe that we can do it? Please type yes if you also think so that it is possible. I'm listening to you. You can type yes if you also think that it is possible. No idea. Chirag says, Sudhir says yes. Cool, thank you. Yes, thank you. So I'm keeping it like not in full screen, in short screen only. It is feasible for me to read your chats as well. So we can have this goal entire English communication in 90 days, or we can make it more specific. We can make it like we can master English fluency or English grammar or English pronunciation in 90 days as per your target. जो भी आपका टारगेट है उसके हिसाब से आप अपना गोल सेट कर सकते हो. अगर you want to set that higher goal, English communication entirely, then you set this goal. But in my community, I have set this goal that is English communication, not only a specific part of it like fluency or grammar. तो क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं, हम कैसे इस गोल को अचीव करेंगे, वो मैं इस वर्कशॉप में आपको बताने वाला हूँ. और थोड़ा सा मैं डेमो भी दूंगा कि हम कैसे कराते हैं और कैसे इंग्लिश को इजी बनाते हैं, इजी एंड सिंपल बनाते हैं. तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन first thing I'm going to discuss, then I'm going to discuss my values, then our motto. हमने ऑनलाइन कोचिंग ये क्यों स्टार्ट किया और हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं इंग्लिश लोग. फिर ग्राउंड वर्क. एक्चुअल में ग्राउंड वर्क किसी काम करने के लिए ग्राउंड वर्क करना पड़ता है. अगर वो नहीं करते हैं तो बिल्डिंग ढंग से खड़ी नहीं हो पाती है एंड इट कीप क्रैशिंग. वो उस चीज पे काम करेंगे हम. देन इंग्लिश एंड इनकम कैसे काम करती है एंड हाउ अ लैंग्वेज कैन बी लर्न इन नो टाइम. कैसे हम इंग्लिश को बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं. आई विल डिस्कस दैट एंड लर्निंग इन अ स्नैप. आई विल गिव यू अ डेमो इन दिस पार्ट. देन आई विल टेल यू हु एम आई, my English story, how I learned English, how to master English in 90 days, the roadmap I will tell you. Then task to cover up. I will tell you key
हम अपनी कम्युनिटी में इस 90 डेज चैलेंज में हम क्या क्या कवर करते हैं। फीचर्स बताऊंगा कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, क्या क्या है हमारी कम्युनिटी में जो जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। आउटकम क्या होगा 90 डेज का, और कंटेंट एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आई विल टेल यू दैट हाउ इट हैपेंस। और 6 स्टेप सिस्टम एंड इजी पीजी वे टू फ्लुएंसी एंड ऑफर द एंड आई विल टेल यू द ऑफर। So clarity on why we all know that English is important, and everybody has his or her own reason to learn the language. But right now, I want you to recall that reason कि आप actual में English क्यों सीखना चाह रहे हैं। You write it down कि ये मेरा रीजन है मेन, मैं इसलिए इंग्लिश को मास्टर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहता हूँ। यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। Career. Chirag says career. For job, presentation, confidence. Okay, Sudhir, thank you. Hassan, what do you think? All right, guys. Thank you for your response for enhancing confidence. Cool. Thank you. So, these are the reasons, you know, good enough to learn this language of opportunities. Whenever we do something, if we know that in how much time we want to do it, and it helps us to stay focused, to work hard. You can have your own timings, like how much time you want to give to your English communication. But I have already set this time, that is 90 days. We can master this language. My values, why, what I believe in, and how I function. Self development, that is my core belief. I like to develop myself, I like to learn every day. I love to serve people, because service to humans is like service to God. I believe in it, and that is the primary goal. Monetary goal is secondary. Third is relationship. We are social animals, and we are all interconnected. Nobody, as they say, like no man is an island. So I believe in good relationship, harmonious relationship with everybody, with my clients, with my friends, with my family members, with my relatives, with everybody. So all these three values are very dear to me, very important to me. Now our motto. What is our motto? Why I am functioning the way I am functioning? Why I am taking this workshop? Communication is like, I believe communication is very basic part of it. Without communication, human life is hardly possible, and will become really hard. Actually, the whole earth, everything on the earth is communicating in one way or the other, and that's what the motto conveys. Abra kadabra. Whatever I say, I create. You might have seen, or you might have noticed, whatever we see around us, they were just an idea. They were just some ideas one day. But now they are the manifestation of those ideas. So whatever we think, whatever we say to ourselves, whatever we say to people, we create that. So English
or words or our language is that powerful. It creates our world. It creates this world. And it is the very basic foundation of our life, how our life function, how successful we become in our life, how happy, how satisfied, how fulfilling our life becomes depends on our communication. So I believe communication is life changing, life transforming, and it should be worked upon. Type yes if you agree with me. I would love to see you agreement with me. Sudhir says yes. Thank you, Sudhir. Hmm. That is my motto. Hassan, thank you. Then groundwork. Let's come to this groundwork. What is this groundwork? Groundwork is setting a goal and achieving it. And why people fail to achieve goals. The real reason why that happens. Every new year, so many people, almost all of us, make resolutions that I will achieve this goal this year. I will lose fat. I will master English communication. I will gain this skill. So many goals we set, but most of us fail. जनवरी आते आते, फरवरी आते आते सब भूल जाते हैं हमको. तो क्यों होता है ऐसा? क्या कारण है? So these are the six reasons. I was doing research and I came up with these six reasons कि इसलिए हम अपने goals को अचीव नहीं कर पाते. पहला पहला है क्लियर विजन एंड स्पेसिफिक गोल सेटिंग. क्लियर विजन नहीं होता है एक्चुअल में क्या क्या करना चाह रहे हैं हम, और एक्चुअल में है क्या वो चीज. स्पेसिफिक गोल नहीं होता है हमारा. फिर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन की कमी होती है. गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन मोटिवेशन और कमिटमेंट लैक करते हैं बिकॉज आर इन्वायरमेंट पुल्स अस बिहाइंड. जरूरी नहीं है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट हमें हमारी लर्निंग में, हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहा हो. इनफैक्ट वो आपको पीछे खींच रहा होता है, आपको डीमोटिवेट कर रहा होता है. फिर इफेक्टिव प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी. प्लानिंग जो करते हैं हम वो इफेक्टिव नहीं होती है, एक्चुअल में लाउजी होती है, लाउजी होती है. और आप इसीलिए जब प्लानिंग अच्छी नहीं होती है तो आप फेल होते हैं. देन कंसिस्टेंट एक्शन एंड परसिस्टेंस. कंसिस्टेंटली आप एक्शन नहीं लेते हो. जो भी आपने प्लान किया है, जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, उस पर प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाते हो, परसिस्टेंट नहीं हो पाते हो. देन रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन. मॉनिटर आप नहीं कर रहे होते, मतलब सी अगर कोई फिजिकल गोल हो, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो प्रॉपर हमें पता होता है कि देखो इतनी इतनी दूरी हमने कवर कर ली है और इतनी दूरी हमें और आगे जाना है. किलोमीटर्स में सब कुछ डिफाइन होता है. लेकिन जब ये एब्स्ट्रैक्ट गोल्स होते हैं हमारे, जो दिखाई नहीं देते, जिनको छू नहीं सकते हम, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट गोल होते हैं, तो इनको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा रीजन है फेल होने का. हम अपनी कम्युनिटी में ऐसा ऐसा नहीं होने देते बिकॉज वी बिलीव इफ यू कैन नॉट ट्रैक इट, you cannot improve it. So this is why we have the mechanism to track your progress. आपने आज कितना सीखा, आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया. we help you in that. then regular monitoring and then support and accountability. आपको 10 चीजों में प्रॉब्लम आती है, मे बी मोटिवेशन, मे बी इन्वायरमेंट, मे बी रिसोर्सेज यू डोंट हैव, तो उस चीज पे भी हम आपको प्रॉपर सपोर्ट देते हैं. एक अकाउंटेबिलिटी सेट होती है कि आपको एक्चुअल में आप किसी चीज को नहीं भी कर पा रहे हैं, देन वी विल पुल यू आउट फ्रॉम दैट, वी विल हेल्प यू, वी विल सपोर्ट यू इन दैट. तो ये चीजें हैं सारी जो किसी इंसान को गोल अचीव करने से रोकती है. उसके बाद जो आता है ये चीज आती है ईट एंड एस. आई जस्ट मेड एक्रोनिम ऑफ इट, जो एक्चुअल में है ई स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट. एज आई डिस्कस्ड कि इन्वायरमेंट कभी कभी हमें
पीछे खींचता है आगे बढ़ने बढ़ाने की बजाय। फिर सेकंड इज, इधर से है ये एनर्जी, ई फॉर एनर्जी एक्चुअल में। एनर्जी इज, सी व्हाट हैपन, वी डोंट फील द सेम वे एवरी डे। हमारी एनर्जी कभी लो होती है और कभी हाई होती। तो इस एनर्जी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एनर्जी ही हमें हमारे गोल तक पहुंचाएगी। तो वी नीड टू मेंटेन दिस एनर्जी बाय ईटिंग राइट फूड, बाय डूइंग एक्सरसाइज एंड बाय अप्लाइंग सम अदर टेक्निक्स which can maintain, which can help us to maintain this energy. Second thing is attention. We are living in a world full of distraction. Our attention span is getting shorter and shorter day by day. अटेंशन को कैसे बढ़ाना है, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाना है, फोकस को हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, इन चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है। फिर टाइम को मैनेज कैसे करना है, दैट इज क्रूशियल थिंग। देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू in 24 hours. Time is less and things are more. How you manage your time accordingly, that is a tactic. Then accountability I talked about, commitment and environment I talked about. How a learning can be learned in no time. ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम इसको जितना जल्दी हो सके सीख सकें, लैंग्वेज को मास्टर कर सकें। सी, यहाँ पे हम छह छह प्रिंसिपल बनाए हैं हमने। देर आर 6 प्रिंसिपल जिनको आप काम अगर आप अपनाएं तो आप बहुत जल्दी मास्टर कर सकते हैं लैंग्वेज को। फर्स्ट इज रेलिवेंट एंड इंटरेस्टिंग। जो आप लैंग्वेज सीख रहे हो, आपको कुछ ऐसा सीखने की जरूरत नहीं है जो आपकी जिंदगी से, आपकी डेली लाइफ से बाहर हो, आपकी करियर से बाहर हो, जो आपसे रिलेटेड है, जो आपसे रिलेटेड रिलेवेंट है आपकी लाइफ से, आपसे। सिर्फ उन चीजों पे ध्यान दीजिए जो आपको इंटरेस्ट दिलाता हो, जिसमें आपको मजा आता हो उस काम को करने में। सिर्फ उन चीजों को पढ़िए, देखिए, वो चीजें काम करती हैं। फिर सेकंड प्रिंसिपल इज यूजिंग इट फ्रॉम द डे वन। पहले दिन से ही स्टार्ट कीजिए आप इंग्लिश को यूज करना। कि आप अगर अगर कोई ग्रोसरी लिस्ट बना रहे हैं तो ग्रोसरी लिस्ट इंग्लिश में बनाइए। अगर आप छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे सेंटेंसेस, आपके इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं उनको इंग्लिश में कहना शुरू कीजिए। उनकी इंग्लिश ढूंढिए अगर आपको इंग्लिश नहीं पता है। जो भी आप काम कर रहे हैं डे टू डे उनको इंग्लिश में करिए। देन लर्न व्हाट इज नीडेड। जो भी आपको जरूरत है सिर्फ उसको सीखिए, ना कि बाकी सारी चीजों को। देन स्टॉप ट्रीटिंग इट लाइक अ साइंस, इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस। हमारे स्कूल सिस्टम ने हमें इंग्लिश को एक साइंस की तरह ट्रीट करना सिखाया। उन्होंने इंग्लिश को साइंस की तरह ट्रीट किया और हमें भी ऐसा ही बना दिया है। लेकिन कोई भी लैंग्वेज साइंस हो ही नहीं सकती है। Language is always a creative process, no matter which language, or it flows like a stream of river. बहती है पानी की तरह। आप अगर लिटरेचर पढ़ोगे उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो हम फॉलो करते हैं इंग्लिश में, वो एक तरीका होता है। लेकिन अगर आप पोएट्री पढ़ने लगो वो सब इधर उधर हो जाता है। कभी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो जाता है, कभी सेंटेंस ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है। तो वो चीज अप्लाई नहीं होती है यहाँ पे। साइंस की तरह इसको ट्रीट मत कीजिए। इसको एक एक क्रिएटिव प्रोसेस की तरह इसको आप अप्लाई कीजिए। देन इट्स नॉट अबाउट एक्यूमुलेटिंग लॉट्स ऑफ नॉलेज। बहुत सारे लोगों का अप्रोच यही होता है कि मैं ये भी वर्ड सीख लूँ, वो भी वर्ड सीख लूँ, ये चीजें सीख लूँ। या फिर इंग्लिश को वो ऐसे सीखते हैं कि अगर मुझे ये सेंटेंस बोलना हो, जैसे कि वह छत पर गया, तो इसको ऐसे बोलते हैं। मुझे अगर किसी को साइड देने के लिए कहना है तो उसको ऐसे बोलते हैं। इस तरह से आप नहीं
नहीं सीख सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आप इंफॉर्मेशन को गैदर करके उनको सिचुएशन पे फिक्स कर दोगे। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको सिर्फ बेसिक चीज सीखनी पड़ेगी कि कैसे लैंग्वेज काम करती है। स्टे अपबीट फॉर इट। Staying upbeat is like giving your mind proper space and energy to work, to function properly. Upbeat means happy. You stay happy, you work better, you function better, you become more efficient. तो लैंग्वेज के केस में भी यही चीज अप्लाई होती है कि आप अपने आप को खुश रखें, तभी आप अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे, तभी आप में जो आइडियाज हैं आपका माइंड उनको कैप्चर कर पाएगा। Then apart from six principles, there are six actions as well, जो आप कर सकते हैं, जिनको आपको करना चाहिए इंग्लिश को मास्टर करने के लिए। पहला एक्शन है, आप इनपुट रखिए। इनपुट आप कैसे डाल सकते हो? रीड करिए, लिसन करिए, और वीडियोस वगैरह जो भी है जितना हो सकता है आप उनको उनको देखिए। और रीड और लिसन क्या करना है एक्चुअल में, यहाँ पे ये एक क्रूशियल पॉइंट है। अगर कोई चीज आपके 50 से 60% तक समझ में आ रही है, तो इट मीन्स इट इज गुड फॉर यू। कोई भी बुक हो, कोई भी वीडियो हो, कोई भी मूवी, 50 से 60% आपकी समझ में आ रही है वो, देन ज्यादा आपको उसमें डिस्ट्रेस या फिर अनहैप्पी होने की जरूरत नहीं। आप उसको करते रहिए, रोजाना करिए, बिकॉज जब आप कोई एक काम रिपीटेटिवली करते हो तो उस कुछ टाइम के बाद वो आसान लगने लगता है। जो चीज आपको समझ में नहीं भी आ रही होती उस वो समझ में आने लगती है धीरे धीरे। तो इंग्लिश के साथ भी यही होता है। आप कंटिन्यू रखिए उस चीज को। फिर सेकेंड एक्शन इज फोकस ऑन मीनिंग फर्स्ट देन द वर्ड। ये ट्रिकी चीज है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं। जैसे हम जब बच्चे होते हैं तब हम इंग्लिश को सीखते हैं। तो जब बच्चे होते हैं, हम हमारे आसपास जो लोग बोल रहे होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन जो हमारे होते हैं, टीचर्स होते हैं, अदर पीयर्स होते हैं हमारे, वो सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहे होते हैं। तो हम सिचुएशन पे ध्यान देते हैं और उसने क्या कहा क्या बोला उस पे ध्यान देते हैं, वर्ड बाद में आता है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि after spending my theoretical days, now I have come to my pragmatic days. This was the time to say goodbye to school. I'm repeating my sentence that after completing my theoretical days, I have come to my pragmatic days. It's time to say goodbye to school. So from this sentence, if you see the context, school theory, then you can easily draw the meaning. You can easily understand the meaning of pragmatic, what it means. But before that, you need to you need to focus on the meaning instead of the word. And this is how it happens. Whenever you are learning the language, focus on the meaning first rather than the word. So pragmatic means practical over here. Action 3 is start speaking like a baby. If you are at basic level, it is important कि आप उस लैंग्वेज को स्टार्ट करना शुरू करें। जब आप लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप 3 शब्द बोलते हैं, तो आप 3 शब्द बोलने के बाद 2 शब्द आपको अपने आप याद आ जाते हैं या फिर आपके इन्वायरमेंट से मिलते हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं वो बोलते हैं। तो जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उस लैंग्वेज को, उतना ही ज्यादा आपके पास वो आएगी लैंग्वेज। Everyone suggests to speak 15 minutes on daily basis, but what should we have to speak or practice for English fluency?
fluency. To out from nervousness, to get confidence, to be a good computer storyteller. Hmm. I'll answer that, buddy. I'll answer that. Sudhir, I'll answer that. Stay in the workshop. Third thing I'm talking about: speak like a baby. Whatever you are speaking, just use the language. The more you speak, the better it gets. The more you use, the better it gets. Whether it is writing, speaking, or just even thinking. Focus on the core. 3,000 words over nine cover 98% of what you want to say. Every language, this is true for every language. Every language has its core, and core. What do I mean by core? The common words which are commonly spoken by the native speakers, by the people, by the users of that language. तो उसमें क्या होता है कि अगर वो वर्ड सीख लें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लें, देन यू कैन इजीली यूज दैट लैंग्वेज. तो ज्यादा फोकस कर ज्यादा चीजों को ब्रॉड करके उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड सीखने की जरूरत नहीं है. जो सिंपल वर्ड्स हैं, जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं, सिर्फ वो सीखने की जरूरत है. Not only speak but think in English too. That is crucial. This is life changing. अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन उससे पहले ट्रांसलेट करते हैं, तो stop it right here, right now. Because till the time you don't make it a primary language in your head, it is not going to be to become your habit. Ultimately, language speaking is a habit, and you have to make it a habit to use the language primarily. Make it the language of your thoughts. Direct connect to mental images. You might have noticed, or maybe you will notice that we all think in images. We all remember everything in images. And whatever we have seen, whatever memory we have, that is stored in images. फोटो में पड़ी हुई है सारी चीजें हमारे दिमाग में. अगर फोटो मैच नहीं करता है तो इट मीन्स वी हैव फॉरगॉटन दैट. तो ये चीजें होती हैं. 6 एक्शंस आपने लेने होते हैं एटलीस्ट, आप अपनी लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए, जल्द से जल्द सीखने के लिए. नाउ जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करेंगे. और स्पेनिश हमें नहीं आती है, मुझे नहीं आती है, प्रोबेबली आपको भी नहीं आती है, लेकिन हम स्पेनिश के 5 वर्ड्स सिर्फ 5 मिनट में कैसे सीख सकते हैं. देखो कितना इजी हो सकता है. दिस इज this is the first word of Spanish. We call it hablar. I have given the meaning of it. Hablar is to speak, to say something, and pronunciation is hablar. Hablar actually. ये Spanish जो है, मैंने थोड़ा देखा था कि हिंदी की तरह ही है ये लैंग्वेज स्पेनिश. और जैसे हमारी हिंदी फोनेटिक लैंग्वेज है, स्पेनिश भी फोनेटिक लैंग्वेज है. फोनेटिक लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जैसी लिखी जाती है ऐसी ही पढ़ी जाती है. इंग्लिश की तरह नहीं है कि हमें प्रोनाउंसिएशन भी सीखना पड़ेगा. नहीं, प्रोनाउंसिएशन सीखने की जरूरत नहीं है. अगर आप पढ़ सकते हो लैंग्वेज को तो आप बोल सकते हो. प्रोनाउंसिएशन आपको आराम से आ जाएगा पढ़ के ही. तो hablar is to speak. Then comer is to eat. Now I have given you 2 examples. Third example, you yourself can tell easily by seeing the picture. Leer. What does it mean? Leer. You can type it on chat, people. Leer. What does it mean? Come on, Sudhir. Yeah. No reading. Sudhir and yes, other person. What do you think?
Actually, it means reading. Leer, it is quite visible, so we can easily remember this word. Leer means to read something. Then what does it mean? Ascriber. Ascriber is to write easily, and corer means to run. See, when we when we connect the words to images, it becomes easier. It becomes easier, and we help our memory to store them easily. We don't have to process the information so much. We don't have to use that energy converting words into picture. Picture is already available, and it is easily stored. We most of us are visual learners. So visually जो हम देखते हैं वो easily हमारे दिमाग में रह जाता है. फिर बेस्ट मेथड टू लर्न अ लैंग्वेज, ग्रामर फोकस और कॉम्प्रीहेंशन अप्रोच. दो तरह के बंदे मिले हैं मुझे 10 11 12 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश को. और दो तरह के कौन से बंदे हैं वो? पहले वो हैं जिन्होंने इंग्लिश को ग्रामर से सीखा है. उन्होंने पहले ग्रामर सीखी, ग्रामर सीखने के बाद फिर उन्होंने बोलना सीखा धीरे धीरे. सुधीर, आई एम कमिंग टू दैट. धीरे धीरे उन्होंने बोलना सीखा. और दूसरे दूसरे जो लोग हैं वो इस तरह के हैं कि उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन से सीखा, मतलब बोल के सीखा, अपने इन्वायरमेंट से सीखा. जैसे भी उन्होंने पिक की लैंग्वेज को वीडियो से, मूवी से, अपने स्कूल से, अपने आसपास के बोलने वालों से, अपने फैमिली मेंबर से, उन्होंने पहले लैंग्वेज को समझा कि हाँ क्या कहना चाह रहा है सामने वाला बंदा, और फिर उसी को इमिटेट किया, उसी को जो उसने बोला उसी को उसके शब्दों में उसको जवाब दिया. तो ये कॉम्प्रिहेंशन अप्रोच है. पहले वाली जो है अप्रोच वो ग्रामर. इसको हम आप कह सकते हैं कि पहले वाला जो ग्रामर मेथड है वो कहा जाता है इनडायरेक्ट मेथड, कि आप ग्रामर की हेल्प लेते हो किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए. लेकिन ये कॉम्प्रिहेंशन जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है. डायरेक्ट मेथड है, आप बोलना शुरू करते हो, आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पे वो लैंग्वेज यूज होती है, आप समझते हो और बोलते हो. तो बेस्ट मेथड क्या है इनमें? सुधीर हैज द आंसर, ही हैज ऑलरेडी सेड इट. कॉम्प्रिहेंशन इज द बेस्ट मेथड. व्हाई सो? बिकॉज स्टडीज में एक्सपर्ट ने स्टडी करी थी और उसमें पता लगा कि जो लोग कॉम्प्रिहेंशन मेथड से लैंग्वेज को सीखते हैं उनका कॉम्प्रिहेंशन मच बेटर होता है. जो ये ग्रीन वाला है ये कॉम्प्रिहेंशन मेथड वाले हैं, और जो ये वायलेट वाला है ये है ग्रामर सीख के इंग्लिश बोलने वाले. तो यू कैन इजीली सी द डिफरेंस कि एक्चुअल में कौन सा मेथड ज्यादा बेटर है. तो यहाँ पे हम अपनी कम्युनिटी में कॉम्प्रिहेंशन मेथड पे ज्यादा ध्यान देते हैं. ग्रामर तो सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो जिन लोग अभी पिक कर रहे हैं, थोड़ी सी हेल्प लेते हैं, देन वी क्विकली कम टू डायरेक्ट मेथड. लेट्स लर्न इन अ स्नैप. अभी तो जल्दी जल्दी सीखते हैं, और कितनी जल्दी सीख सकते हैं हम? 13 न्यू फ्रेजेस इन 5 minutes. पॉसिबल है 13 न्यू फ्रेजेस को सीखना 5 मिनट में? पॉसिबल है गाइस? If it is possible, please say yes or no. No. Chirag says no, it is not possible. Thank you, Chirag, for responding. Sudhir, what do you think? Another person can't say. Okay. Okay. So, see, it is highly possible and you will do it. You are going to do it, guys. मैंने बोला कि आप कैमरा ऑन कर लिए, लेकिन कैमरा नहीं ऑन करना चाहते आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं अभी कर रहा हूँ आप मेरे साथ करिएगा, ठीक है? आपके दोनों हाथ फ्री होने चाहिए, आप आराम से बैठे हो. अगर आप फोन से अटेंड कर रहे हैं क्लास को तो फोन को रख दीजिए, और मेरे साथ जो जो मैं करूंगा आप वो करिए. आपके हैंड्स फ्री होने चाहिए.
13 फ्रेज हम 5 मिनट में सीखने वाले हैं, और वो 13 फ्रेज कौन सी हैं? वो ये वाली। लेट्स लर्न देम वन बाय वन। तो ये क्या है? आई एम स्नैपिंग। स्नैपिंग इज, प्लीज डू इट विद मी, स्नैपिंग इज दिस, snapping. Can you do it? This is called snapping. Then rotating my neck. I'm rotating my neck. Please do it with me. Then anti-clockwise, I'm rotating my neck. Then next phrase is I face palm myself. Face palm is face palm. When you do something and you don't want to face the people, so you just face palm. This is called face palming. Then nudging. Nudging is, अगर कोई कोई आपके सामने आप अपने दोस्त के साथ खड़े हैं और कोई सामने से आ रहा है जिसको आप डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं कर सकते अपने, और अपने दोस्त का भी ध्यान वहां पे लेके आना चाहते हैं, तो आप वो नहीं मारते हैं उसको, बगल में खड़े हुए इंसान को, दोस्त को अपने, उसको कहते हैं नजिंग। राइट? ऐसे आप, यू कैन डू इट इन दिस वे गाइस। इट विल रिमेम्बर easy, it will be remembered easily by your body, by your memory. It is called nudging. Then next one is I am sticking my tongue out. Sticking my tongue out. This is another one. And I am stretching, matlab अंगड़ाई लेना is stretching, और एक्सरसाइज का पार्ट भी होता है stretching. Then I am tapping. This is called tapping. Then I am chuckling. Chuckling is, to smile in a hidden way, like you don't want to show it, but still you smile in that way. It is called chuckling. Then I'm grinning. Grinning is a fake smile when you don't want to laugh, but you just need to smile. I mean, when you don't want to smile, but you need to smile. That is called grinning. Some people do it when they meet people, when they want to welcome it. Generally, people do it when they welcome somebody. So grinning is smiling, fake smile. Then blinking is blinking with both the eyes, और अगर एक आंख बंद करते हैं तो हम उसको कहते हैं wink. Then waving is this very simple word we use, wave, to say bye. And then shrugging. Shrugging is what? Shrugging is, this is कंधों को पीछे लेके जाना. Please do it with me, guys. Shrugging. I don't know. Shrugging is this. Right? And nodding is this. Nodding. Yes, he nods, or he nodded. No, he nodded. This is called nodding. Yes, these were the 13 words. I think we haven't spent 5 minutes still. Did you learn something? Like something new? Maybe कुछ words, कुछ phrases ऐसी थी जो आप already जानते होंगे, सुधीर, चिराग, लेकिन कुछ ना कुछ तो नया होगा, या फिर आप already सब कुछ जानते थे? थैंक यू सुधीर। सुधीर से यस। चिराग, पॉसिबल हुआ ये 13 phrases 5 मिनट में सीखना? सो इट इज पॉसिबल। डिपेंड करता है कि आप क्या अप्रोच लेते हैं और किस तरह से अप्रोच करते हैं इस चीज को। वेरी हार्ड वर्ड्स। हार्ड वर्ड नहीं है, आप अगर एक बार और रिपीट कर रहे हैं वो छप जाएंगे आपके दिमाग में। इट डिपेंड्स, अगर आपने मेरे साथ किया होगा तो ये आराम से आपके दिमाग में आराम से हो जाएगा, याद हो जाएगा। टैपिंग मीन्स व्हाट यू टोल्ड सर। टैपिंग इज, दिस इज टैपिंग, व्हेन यू हिट समथिंग विद योर हैंड, टैप। यू टैप द फोन। आप जब फोन आता है तो क्या करते हो? यू टैप इट, टैप ऑन द बटन्स। बटन को टैप करते हैं ना, उस पर हाथ मारते, उंगली मारते हैं। सो नोडिंग, यू अंडरस्टैंड नाउ। अभी जो, हाँ जो है, अभी हम
हमने 13 वर्ड सीखे, अभी 20 वर्ड सीखने वाले हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में 20 वर्ड्स हम कैसे सीखेंगे, चलो देखते हैं। कैसे सीखने वाले हैं हम 20 वर्ड्स 5 मिनट में। ये वर्ड्स हैं, आपको ऑलरेडी 10 वर्ड ये पता है आपको। ब्राइट का पता है, डार्क का पता है। ब्राइट मतलब चमकीला, डार्क अंधेरा, काला। वाइड मतलब चौड़ा, टाइट मतलब टाइट। हिंदी पता नहीं क्या होती है इसकी, टाइट की। लूज ढीला, शॉर्ट छोटा, क्विक जल्दी, डीप गहरा, शार्प मतलब तीखा बहुत तेज, और वीक कमजोर। तो हमने कुछ नहीं किया है इन 10 वर्ड्स में। ये सभी 10 वर्ड जो हैं एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव एडजेक्टिव मतलब किसी चीज को के बारे में बताते हैं। डीप वेल, क्विक रिस्पॉन्स, शॉर्ट नोटिस, टाइट ड्रेस। तो इन एडजेक्टिव में हमने ई एन ऐड किया है। ई एन ऐड करने से ये वर्ब बन गए, एडजेक्टिव से वर्ब बन गए, एक्शन बन गए। तो इनको आप एक्शन के तौर पे यूज कर सकते हो। एक्शन के तौर पे कैसे यूज करते हो, मैंने अपने एक और एलईडी बल्ब लगाई एंड आई ब्राइटन, ब्राइटन माई रूम। आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। आई ब्राइटन, आई ब्राइटनड, ईडी और लग जाएगा उसमें अगर पास्ट में बोलेंगे। तो आई ब्राइटन माई रूम। आई हर आई सर्कल, आई मीन हर डार्क सर्कल darkened during these 15 days, darkened during these 15 days, widen. The income gap widen. The income gap between rich and poor widens in last 10 years. तो वाइड आप ऑलरेडी जानते हो, वाइड का वाइडन किया और उसको हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं ऐसे सिंपल। 10 वर्ड्स आपने 2 मिनट भी नहीं हुई है गाइस, एंड यू लर्न दैम क्विक एंड डीपन। यू कैन यूज देम इन योर सेंटेंस इजीली। कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन स्टिल डिस्कस विद मी। देन नेक्स्ट 10 वर्ड्स हम करते हैं ब्रॉड, ब्रॉडन, फ्लैट, फ्लैटन, हार्ड, हार्डन, सॉफ्ट, सॉफ्टन, स्ट्रेट। मीनिंग सेम रहता है पीपल, मीनिंग सेम रहता है इनका जो आपको ऑलरेडी पता है। सॉफ्ट का मीनिंग स्ट्रेट, थिक, थिन का मीनिंग। लेकिन ये एक्शन बन जाते हैं ई एन जोड़ते ही। इनको आप एक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं। फास्ट, फास्टन मैं एग्जाम्पल यूज करता हूँ। फास्ट का फास्टन, यहाँ पे फास्ट, फास्टन 2 वर्ड है एक्चुअली। फास्टन मतलब बांधना भी होता है। आई टाइड द laces, laces of my shoes, or I fasten them, fasten them. Light, lighten, lighten the burden from my shoulder. कोई मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे काम आ गया है, तो my friend came and he took some of my tasks. मेरे से कुछ काम ले लिए उसने, so he lightened me up. मेरा काम उसने हल्का कर दिया, मुझे हल्का कर दिया। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं स्वीट को स्वीटन। यू हैव स्वीटन दिस कॉन्वर्सेशन बाय एडिंग दिस। आपने इस कॉन्वर्सेशन को और भी मीठा बना दिया है। गाइस सी, ऐसे भी हम इंग्लिश को सीख सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंगली। जो आपके दिमाग में ऑलरेडी नॉलेज पड़ी हुई है उसको यूज करके, ना कि कोई नई चीज बहुत डिफिकल्ट गहरे गहरे शशि थरूर वाले वर्ड्स लेकर के जो लोग सुनने में भी अटपटे लगे और लोगों को समझ में भी ना आए। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है कि आप जो कहना चाह रहे हो सामने वाले के दिमाग में पहुंच जाए, वो सेट हो जाए, ना कि वो कंफ्यूज हो जाए। ये मेन पर्पज होता है। तो बड़े बड़े हैवी हैवी वर्ड यूज करके लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करें। सिंपल बनाएं अपना कॉन्वर्सेशन, उतना ही अच्छा रहेगा। अपने बॉस से, अगर अपने सीनियर से थोड़ा बहुत हल्के फुल्के बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं तो वो वहां पे सही है, अच्छा है, बहुत बहुत सही, आप करते रहो। लेकिन कीप योर कॉन्वर्सेशन वेरी सिंपल।
लेट्स लर्न इन स्नैप ये हो गया है हमारा, और लेट्स लर्न इन स्नैप ये कॉम्प्रिहेंशन है, छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन है पीपल, वी कैन डू इट इन 2 मिनट्स। तो आप साइलेंटली पढ़ सकते हैं, फिर आगे हम इस पे 3 क्वेश्चन हैं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और लेट्स सी कि आप क्या कहते हैं। प्लीज रीड इट फॉर 2 मिनट्स। I hope you read it, people. So here is the question, the very first one. The very first question: how do people in Korea calculate a newborn's age differently compared to international age? You can type your answers, people. How do people in Korea calculate a newborn's age differently? What's your answer? I hope you understand the paragraph. Quite interesting. They calculate 1 year at time of born, and another second year at 1st January, no matter what actually birth date. So when a baby is born, that baby is already 1 year old. It means they calculate the age of the baby when the baby is conceived. जब बेबी कंसीव होता है मम्मा के पेट में, तब से ही वो मतलब उसकी एज को कैलकुलेट करते हैं। तो जब मतलब बच्चा पैदा होता है 9 मंथ्स, इजी एक रफ आइडिया होता है, रफ क्या मतलब जनरली यही होता है 9 मंथ्स, तो उसको ऑलरेडी वो 1 साल का मानते हैं। और जब ये तो इसके साथ साथ दूसरी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि वो बर्थडे ना मना के जब साल चेंज होता है, तब हर एक इंसान की उम्र 1 साल बढ़ जाती है। ये दिख रहा है ना सेकंड लाइन में, देन एवरीवन इन कोरिया एड्स 1 ईयर टू देयर एज ऑन January 1st। January 1st आते ही सबके सब अपनी उम्र में 1 साल जोड़ देते हैं। ये दो चीजें यूनिक है व्हेन इट कम्स टू कोरिया। जब बच्चा पैदा होता है वो एक ऑलरेडी 1 साल का होता है, और जैसे ही साल बदलता है 1 साल हर कोई अपनी अपनी उम्र में जोड़ देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बच्चा भले ही दिसंबर नवंबर में 1 महीने का हुआ हो एक्चुअल इंटरनेशनल एज के हिसाब से, लेकिन कोरिया के हिसाब से वो बच्चा 2 साल का हो जाएगा जनवरी में, January 1st को। ये क्वाइट यूनिक कॉन्सेप्ट। What is the significance of January 1st in the Korean age system? तो यही है, they change their age, means they add 1 year to their age, and everybody, it happens with everybody कि वो 1 साल अपनी उम्र में जोड़ देते हैं। And third one is, why is the concept of Korean age important in Korean culture? Korean culture में why it is important? Everyone adds 1 year on their age, right, Sudhir? And why it is important in Korean culture? In Korean age, why it is important?
Come on, it is given over here, Sudhir. No idea. No need to have an idea. It is given over in the paragraph. This tradition is unique to Korea and is important in Korean culture, especially for social relationship. यहाँ पे देखो ये last one line. For social relationship and respecting elders. जैसे हम अपने बड़ों का आदर करते हैं उम्र के हिसाब से, ना कि उनकी नॉलेज, ना कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उम्र के हिसाब से हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं इन द सेम मैनर, वो भी उम्र के हिसाब से उनको रेस्पेक्ट देते हैं सोशल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में और सोशल एटिकेट्स बनाने में. सो इन दिस वे इट इज इम्पोर्टेंट. नाउ ग्रामर हमने मतलब वर्ड्स वोकेबलरी कर ली है, थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन भी किया है. और यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशन आपने नोटिस किया होगा कि ये कुछ आपने इंग्लिश में नया सीखा है. इंग्लिश तो सीखी सीखी, लेकिन इंग्लिश की प्रैक्टिस तो करी करी. कुछ नए वर्ड्स भी होंगे जो आपके सामने आए हैं, लेकिन एक नई इंफॉर्मेशन भी सीखी है. तो जो जिस चीज पे मैं काम कर रहा हूँ और करता आ रहा हूँ वो ये है कि नो टू रिस्पेक्टिंग अदर, नो आइडिया अबाउट माय मिस्टेक, आई डोंट गिव इट. ओके ओके, नो प्रॉब्लम सुधीर. I want to make a point over here. The point is, my effort is to teach you English without teaching you English. I repeat, to teach you English without teaching you English. I want to help people इन ए वे कि वो इंग्लिश भी सीख जाएं और अपने लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लें, अपने आप का ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लें इंग्लिश के माध्यम से. सिर्फ इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है. इंग्लिश तो आ जाएगी. इट विल बी लाइक बाई प्रोडक्ट. जब हम कुछ ऐसी चीजों में इंगेज होंगे इकट्ठे होके जो लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल हैं, and we will do it in English, then everything will fall on its place. So that is my approach, that is our approach in our community. You learn English without learning English actually. तो यहाँ पे एक चीज और आती है साउंड्स की. When it comes to pronunciation, हम इंडिया में हर कोई इंग्लिश बोलता है. बिहार का बंदा बिहारी इंग्लिश बोलता है, यूपी का बंदा यूपीएन वाली इंग्लिश बोलता है, पंजाब का पंजाबी इंग्लिश बोलता है, तमिल का तमिल इंग्लिश बोलता है. और ये ऐसा इंडिया में ही नहीं है सिर्फ, ये अक्रॉस द वर्ल्ड है. अगर अरेबियन कंट्री में चले जाओ वो अरेबिक इंग्लिश बोलेंगे, रशिया में चले जाओ रशियन इंग्लिश बोलेंगे. What do I mean by Russian Bihari English? They have MTI issue, mother tongue influence. लैंग्वेज में होता ही है उनका. इंग्लिश को वो इंग्लिश की तरह ना बोल के वो अपनी लैंग्वेज की तरह बोलते हैं. तो इस चीज को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, वो चीज हमें सीखनी है. और उस चीज को हम सीखते हैं आईपीए के जरिए, आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट. तो उसमें क्या है कि साउंड्स की अल्फाबेट दिए हुए हैं एक्चुअली इंग्लिश में. हालांकि 26 अल्फाबेट नहीं, 26 लेटर्स हैं. 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में, लेकिन जो 26 लेटर्स हैं ऑलमोस्ट 44 साउंड्स हैं. कम ज्यादा हो सकती हैं. 44 साउंड्स मैं ले रहा हूँ एक रफ फिगर में. ये 26 लेटर्स इन सभी साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि एक लेटर मल्टीपल साउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकता है. एक लेटर मल्टीपल साउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकता है. कैसे? लेट मी टेल यू. डू यू वांट टू लर्न इट, लाइक कैसे? डू यू वांट टू नो, और आई कैन मूव फॉरवर्ड अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज में. प्लीज टाइप यस नो.
ओके सुधीर, आई एम टेलिंग, सी क्या होता है, लेट्स से ये वर्ड आप जानते हो एप्पल, ये वर्ड भी आप जानते हो और ये वर्ड भी आप जानते हो। इन तीनों शब्दों में आई यूज्ड, आई यूज क्या, मैं मतलब जो वर्ड लेटर आया है वो ए आया है। तीनों में ए लेटर कॉमन है। फर्स्ट वर्ड इज एप्पल, एप्पल। second word is father, father, and third one is above, above। तो फर्स्ट वर्ड में आप ए को देख रहे हैं, ए की साउंड है ए, एप्पल। सेकंड में भी ए है, लेकिन साउंड क्या दे रहा है वो आ। फर्स्ट में ए, सेकंड में आ, एंड थर्ड में क्या साउंड दे रहा है, अ, अ। सो ए, आ, अ, ए, आ, अ, अबव। तो लेटर एक ही है, लेकिन साउंड तीन अलग अलग है। तो इसी तरह से जैसे आपने देखा होगा कि एक और वर्ड लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल है सिटी और सिनेमा और कैट। सी सिटी, सी सिनेमा, बट सी कैट, सी का की साउंड दे रहा है। लेटर एक है लेकिन साउंड दो है। तो इस चीज को हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये तो सिर्फ एक दो एग्जाम्पल दिया है मैंने। ऑल 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैव डिफरेंट साउंड्स, कुछ को छोड़ करके। कुछ की एक ही साउंड होती है, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनकी एक ही साउंड है, कुछ लेटर ऐसे हैं जिनकी चार पांच भी साउंड होती है। तो इन दिस वे इट वर्क्स। ये चीजें हम अपने कोर्स में सीखते हैं। अब हम तीन साउंड सीखते हैं, क्योंकि कुछ साउंड्स इंग्लिश में जो है वो हमारी हिंदी में नहीं है, बाकी लैंग्वेजेस में। हर एक लैंग्वेजेस में साउंड ऐसी होती हैं जो यूनिक होती है। यूनिक मतलब किसी और लैंग्वेज में वो एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ वो उसी लैंग्वेज में होती है। और इंग्लिश में ये पहली हम एक साउंड का एग्जांपल लेते हैं। साउंड इज, द लेटर इज टी, एंड द साउंड इज, थोड़ा अपने स्पीकर को अपने कान के पास ले आइए क्योंकि बहुत सॉफ्ट साउंड है। The sound of letter T is t, t, t. That's it, यही साउंड है t, t. I hope I am audible to you. The sound of T is t, t. And the examples are teacher, teacher, pretty, pretty, tomato, tomato, not tomato, tomato नहीं है, but tomato, tomorrow, tomorrow, Tuesday, tomorrow, students, students, students। तो टी की ये साउंड है। देन साउंड ऑफ पी लेटर, पी लेटर की क्या साउंड है? पी लेटर की साउंड है, थोड़ी सी हवा निकलती है जब आप इस साउंड को बोलते हो। और जो हिंदी का फा है, फाफल, हिंदी का फा है और पा है, कहीं ना कहीं बीच में आती है ये साउंड। ना ही कंप्लीटली फा है, ना ही पा है। सो कैसे बोली जाती है ये? आई होप आई एम ऑडिबल। पेपर, पेपर, पैरट, पैरट, स्पोर्ट, स्पोर्ट, स्टॉप, स्टॉप, पिक्चर, पिक्चर,
picture. In the same manner, there is a unique sound, very unique sound, जो काफी difficult भी है actual में pronounce करने, हिंदी में नहीं exist करती है ये sound. इनकी वैरायटीज तो इंग्लिश हिंदी में है पी की और टी की, लेकिन इसकी ये साउंड नहीं है एक्चुअल हिंदी में. तो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? अगर आप इन शब्दों को पढ़ें तो आप कैसे पढ़ोगे इन शब्दों को? द वेरी फर्स्ट वर्ड इज दिस वन, दैट इज कैजुअल. जुअल, कैजुअल. सो द साउंड इज कैजुअल. मेजर, मेजर. जा होता है, जा फॉर जहाज, जा फॉर जीरा, जा फॉर जैम. ऐसे ही दूसरी साउंड होती है जीरो, जूम, जीरो, जूम. तो इसके भी नेक्स्ट वाली साउंड है ये, ना जा है ना जा है, ये है जा. So we pronounce it casual, measure, genre. ये G की साउंड आ रही है यहाँ पे. G इस साउंड को दे रहा है. Yes, it happens in English language. G जो दे रहा है वो ये ja साउंड दे रहा है. Genre, genre, genre मतलब types, categories. Treasure, treasure, treasure. Exposure, exposure. Revision, 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 vision. So यहाँ इन वर्ड्स पे जो साउंड है वो जा है. इंटरेस्टिंग. Are you getting it, guys? Are you getting it? Like, am I coming across, या फिर मैं अजीब ही साउंड कर रहा हूँ पिछले 5-7 मिनट में जो मैंने आपको बताया है? ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है और काफी नई चीजें भी हैं. थैंक यू चिराग फॉर रिस्पॉन्डिंग. ये चीजें मैंने यहाँ पे मतलब अलग अलग की हुई थी. आई ऑलरेडी कवर्ड इट. तो मैं बताना चाहूंगा हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीजें. तो एक्चुअल में मैं अपने आप को ये कहना पसंद करता हूँ, मैं लाइफ सॉर्टेड और इंग्लिश कम्युनिकेशन कोच हूँ. यस, दैट्स इंटरेस्टिंग व्हाई यू प्रोनाउंस. थैंक यू सुदेश, थैंक यू सो मच. तो मैं अपने आप को बुलाना पसंद करता हूँ इंग्लिश कम्युनिकेशन कोच, और थोड़ा लाइफ का टच भी मैं डालना चाहता हूँ अपनी कोचिंग में. और जो मेरी विजन है वो यही है कि मैं जो यंग बंदे हैं जो अभी वर्क फोर्स में शामिल हो रहे हैं, आई वॉन्ट टू सी देम सक्सेसफुल, हैप्पी एंड फुलफिलिंग. क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी मेरे करियर में, कुछ गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से, प्रॉपर गाइडेंस की वजह से. एक्चुअल में वो चीजें जिनसे मैं गुजरा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ना गुजरें. इसीलिए मैंने ये चीजें मतलब अपनी कोचिंग में वो चीजें डाली हैं आप लोगों को सिखाने के लिए. तो दिस इज माय विजन seeing you a working professional to live a successful, happy and fulfilling life. Then मिशन जो है मेरा, और ये सिर्फ कहने की चीजें नहीं है, एक्चुअल में मैं दिल से बोल रहा हूँ. जो विजन जो है एक्चुअल में, और मिशन जो है मेरा, not for the sake of like writing over here, to empower young working professionals and with most useful soft skills so that they can live a life that they want. आपने इम्पोर्टेंस, आप अगर एक्चुअल में मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं तो आप जानते हो कि हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स कितना कितना डिफरेंट होती है और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. हार्ड स्किल आपको जॉब दिला सकती है, लेकिन प्रमोशन आपको सॉफ्ट स्किल दिलाती है. सॉफ्ट स्किल इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और सॉफ्ट स्किल पे ही हम काम करते हैं. कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स.
और प्रॉब्लम कहाँ से ये विजन और मिशन आया है, क्योंकि प्रॉब्लम है लाउजी एजुकेशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम. नोबडी केयर्स अबाउट हाउ वेल यू स्टडी अपार्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स के अलावा हार्डली एनीबडी केयर्स. टीचर्स भी गवर्नमेंट स्कूल में डिपेंड करता है आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है. टीचर्स भी दे जस्ट डोंट केयर मच, और वो अगर फोकस भी करते हैं तो वो सिर्फ मार्क्स पे करते हैं, आपकी एबिलिटी पे नहीं करते हैं कि आप कुछ एबल बन जाओ. आपके ज्यादा मार्क्स आ जाएं बस, वो तो वो चाहते हैं. मार्क्स का क्या होता है आप रियल वर्ल्ड में आप जानते हो. तो जो चीजें मैंने कराई है अब तक, मैं काफी टाइम से इसमें इन्वॉल्व हूँ. जैसे अब मैंने आपको बताया है, आउटडोर क्लासेस जो इंडोर क्लासेस ली हैं, आउटडोर क्लासेस में मैं एक्सपर्ट्स को भी मतलब ट्रेनिंग दी थी मैंने. पिछले 2019 की बात है, 18-19 की. She is from South Korea and he is from Spain. Then again from India, from South Korea. These were these are the picks from our outdoor class. Then indoor class, I used to run the center in DLF Phase 3 near Cyber City. These are the pics from that center. This is me in this is green, light green sweater. These are my students, uh, students again. Some workshop is going on over here, some party is going on in the center itself. Then I am also involved with some NGOs, Pragyada Foundation. Before that, I was involved with the ARM Foundation. And through this foundation, through this NGO, we also help students to learn English. Then this is my trainer, Ashish Martin Chauhan, who is a full-time musician, and he is retired actually now. He's retired and he's having his own band, Played by Ear, with this name. So he sings English songs only. TOEFL training workshop. I attended this workshop on TOEFL. This is the pic from there, and my English story. I have gone through a lot of challenges when it comes to English language. I have got so many rejection people. I don't want to go into details, but as many rejections as you can imagine, maybe around 100. So I wanted to join a call center. It was a dream job at the time, like 2020, 25, 2020, 2005, 6, 7, 8 at that time. I'm from Delhi, Sudhir. I'm from Delhi, Delhi NCR. सो रिजेक्शन बहुत मिला है, फिर उसके बाद सीखी है मैंने लैंग्वेज. और मेरे ट्रेनर जो ये आशीष मार्टिन चौहान है, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, जो मैं जिस तरह की इंग्लिश बोल पाता हूँ आज के टाइम में. और बाकी तो सब प्रैक्टिस है और सेल्फ स्टडी है. और इससे पहले मैंने एक्चुअल में स्टार्टिंग में उनको मेंशन करना चाहूंगा, बीएसएल जो साउथ एक्स में है. बीएसएल उस टाइम पे भी था, अभी भी शायद है, एग्जिस्ट करता है. बीएसएल ज्वाइन किया था. फिर मैंने एक हीरो माइंड था सेंटर. मैंने 2 कोचिंग सेंटर इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर ज्वाइन किए थे इनिशियली. फिर मैंने एनजीओ ज्वाइन किया, जो जहां से मैंने अपने इंग्लिश को ब्रश अप किया था. जो साउंड्स वगैरह जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, वो मैंने वहीं से पिक करी थी. वो आशीष मार्टिन चौहान जी ने मुझे दी, मतलब पढ़ाई थी, ट्रेन किया था. तो हाउ डू वी मास्टर इंग्लिश कम्युनिकेशन इन 90 डेज, ये तरीका है हमारा. जो चीजें कवर करेंगे हम, 3000 वर्ड्स अगर आप बेसिक पे हैं, अगर आप एडवांस लेवल में हैं, तो हम ऐसी चीजें कवर करेंगे जो बिजनेस इंग्लिश, जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो उस लेवल की इंग्लिश वर्ड्स यूज करेंगे हम. जैसे कि कोड पार्क फिगर, बैक टू द स्क्वायर वन, और बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जो बिजनेस फ्रेजेस होती हैं, जो नाइस हैं, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एक्चुअल में सीईओज और मैनेजर्स वगैरह जो हैं, उनके द्वारा यूज करी जाती.
फ्लुएंस पे काम करेंगे, ग्रामर अगर प्रॉब्लम होएगी तो आपको ग्रामर भी एक्सप्लेन करी जाएगी, लेकिन वो स्कूल वाली ग्रामर एक्सपेक्ट मत करना। प्रॉपर प्रैक्टिकल फंक्शनल ग्रामर बताएंगे हम आपको। राइटिंग टेक्निक्स पे काम करेंगे, क्योंकि राइटिंग टेक्निक हेल्प्स यू स्पीक वेल। जब आप अच्छे से आपकी ट्रेन ऑफ थॉट्स सही रहती है तो आप अच्छे से बोल भी पाते हो, वो राइटिंग टेक्निक्स ही करती है स्टेबल उनको। स्टोरी टेलिंग आप पूछ रहे थे, कैसे करनी होती है स्टोरी टेलिंग, हम इसमें सीखेंगे। कॉमन ग्रामर एरर्स पे काम करेंगे। बॉडी लैंग्वेज एक्चुअल में हम बोले ना बोले, हमारी बॉडी तो हमेशा बोल रही होती है, सब कुछ कन्वे कर रही होती है, आवर फीलिंग्स, आवर थॉट्स। तो बॉडी लैंग्वेज पे काम करेंगे। इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यू कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मेरी लाइफ में है दो तीन लोग ऐसे जो जो कभी इंटरव्यू फेल ही नहीं करते। ऐसा क्या है उनमें कि वो कभी इंटरव्यू में फेल ही नहीं होते, जबकि हम लोग बार बार इंटरव्यू में फेल होते रहते हैं। तो वो चीजें वो शेयर करूंगा, सीक्रेट्स हैं। पब्लिक स्पीकिंग, एक्चुअल में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग, जो रिज्यूमे वगैरह है इसको डिस्कार्ड करके पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हैं, ताकि आपको प्रायोरिटीज मिले। जब आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पहले कंसीडर किया जाए, ना कि बाद में, ना कि एक क्राउड में आप भी खो जाओ। क्राउड से अलग खड़ा करते हैं हम आपको पर्सनल ब्रांडिंग देके। और इंटरनेशनल एक्सेंट जो होता है हमारा, न्यूट्रल एक्सेंट आई कैन से इन अदर वर्ड्स, उस पे काम करते हैं, ना कि किसी ब्रिटिश, अमेरिकन, कनाडियन, ऑस्ट्रेलियन। जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक्सेंट है, या सिर्फ कहिए कि प्रोनाउंसिएशन है, नेचुरल प्रोनाउंसिएशन, उस पे काम करते हैं। फीचर्स जो हमारे हैं एक्चुअल में, ये मैं आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में बता रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या करते हैं हम, ये चीजें हम कवर करेंगे। इसके अलावा ये तो सिर्फ हाइलाइट्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कवर करते हैं। फीचर्स ये हैं कि 24/7 आपको इंग्लिश प्रैक्टिस मिलती है। कॉन्ग्रुएंट रिसोर्सेज होती है। कॉन्ग्रुएंट रिसोर्सेज मतलब जो आपके लेवल के हिसाब से हैं, वो वीडियोस हैं, स्टोरीज हैं, पॉडकास्ट हैं, वॉट एवर, जो भी आपका लेवल है उससे थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ताकि आपका लेवल अप हो सके। फिर गारंटीड लेवल अप इन 90 डेज, और ये गारंटीड इसलिए है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या उससे ऊपर है। बेसिक लेवल के लिए मैंने स्पेशली एड में भी डाला था, इट इज फॉर इंटरमीडिएट लेवल। ये कोई मेरा कोई जुमला नहीं है कि मैं ऐसे अट्रैक्ट कर रहा हूँ लोगों को 90 डेज का बता के। मैंने स्पेशली उसमें नोट किया था कि हाँ, ये इंटरमीडिएट अगर आप लेवल पे हो तो इस इज पॉसिबल, बेसिक लेवल पे पॉसिबल नहीं है 90 डेज। हाँ, कंफर्टेबल मैं आपको बना सकता हूँ, श्योरली बना दूंगा। 90 डेज में यू विल स्टार्ट हैविंग कॉन्वर्सेशन इन इन डे टू डे इंग्लिश। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, और कंप्लीट रोड मैप मिलेगा आपको, क्या करना है, कैसे करना है। डेली रिचुअल्स होते हैं, कैसे अपनी एनर्जी को मेंटेन करना है, टेंशन को बढ़ाना है, फुल फोकस कैसे करना है, गोल सेट कैसे करना है। वो सारी चीजें आपको लाइफस्टाइल डिजाइन और कंप्लीट रोड मैप में आपको मिलेंगी। सपोर्ट प्रॉपर मिलेगा आपको, अकाउंटेबिलिटी। आपको थोड़ा सा पुश भी चाहिए होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, टैलेंट तो होता है उनमें, लेकिन थोड़ा सा पुश की कमी की वजह से वो नहीं कर पाते। तो ये चीज अगर आपको थोड़ा पुश मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कोई बड़ा भाई हो या फिर कोई टीचर को मिल जाए आपको, तो थोड़ा पुश कर दे, थोड़ा गाइड कर दे, तो आप निकाल लेते हो, मतलब कर लेते हो सारी चीजें। तो वो चीजें हम देते हैं अकाउंटेबिलिटी के रूप में। और जॉब प्लेसमेंट अगर आपको जरूरत पड़ती है तो हम आपको सही जगह पे भेजते हैं, इंटरव्यू में हेल्प करते हैं। आउटकम जो होगा, आप 90 डेज में आप अपने आप को कहाँ पाएंगे, एक फ्लुएंट पर्सन जो एक इंटरनेशनल लेवल की इंग्लिश बोल रहा होगा। 10 गुना आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे अपने अंदर, और 10 गुना आप बेटर कम्युनिकेट करेंगे। एक्चुअल में ये होता है। और इंटरव्यू रेडी आप होंगे, जॉब रेडी या प्रमोशन जिसकी भी आपको लालसा है, जिसकी के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, एक पर्सनल ब्रांड आप अपना खड़ा कर पाएंगे 90 डेज में। अ डेवलप्ड पर्सनैलिटी,
डेवलप्ड पर्सनालिटी, अब ये देखो कि कितना भी अच्छा कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम योर पर्सनालिटी, इट स्टेम्स फ्रॉम पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी पे अपने आपके सोच विचार, आप कैसे काम करते हैं, कैसे सोचते हैं, उस पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन वहीं से आना है। अगर आप नेगेटिवली सोचते रहते हैं 24 घंटे, तो कम्युनिकेशन भी आपका नेगेटिव ही होगा। पर्सनलाइजेशन करते हैं हम क्लास का, जो भी आपकी इंडिविजुअल नीड्स हैं उसके हिसाब से आपको चीजें प्रोवाइड करते हैं। और ये चीजें मैंने ऑफलाइन भी सेंटर चलाया हुआ है और अभी भी चला रहा हूँ अमेरिका में, दिल्ली में। ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी मैंने देखा है कि ऑनलाइन ये ज्यादा पॉसिबल, इजियर है, पॉसिबल है आपको पर्सनलाइज ट्रेनिंग देना, पर्सनलाइज तरीके से आपको हेल्प करना, जो भी आपकी नीड है। जैसे अगर आप स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इंग्लिश चाहिए एकेडमिक पर्पज के लिए, तो उसमें आपको वो सीधे सीधे आपको ऑनलाइन मोड में दी जा सकती है। अगर आप आइल्स, टोफल या अपनी डुओलिंगो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सी बार एक फ्रेमवर्क होता है, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश, आपकी इंग्लिश को एसेस किया जाता है, तो वो सिखाते हैं हम। फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो होती है, आप उसमें मास्टरी करते हैं। फिर जो कल्चरल, सोशल, पर्सनल, अगर आप एक डेली लाइफ में नॉर्मल इंसान है, कोई स्पेसिफिक नीड नहीं है, तो आप जनरल इंग्लिश के लिए भी जा सकते हैं। और अगर बिजनेस बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपको बिजनेस इंग्लिश की जरूरत है। तो ये चीज कवर करते हैं। लॉयर या कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, तो ESP, दैट इज इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, वी टीच यू इन दैट वे। तो 6 स्टेप सिस्टम है हमारा। अवेयरनेस, आपको को अपना लेवल, एक्चुअल में लेवल क्या है आपका, उसकी अवेयरनेस होती है। आप कहाँ स्टैंड करते हो अपनी, आपकी पर्सनैलिटी वाइज और आपकी इंग्लिश वाइज कहाँ स्टैंड करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना जरूरी है। हम्म। आप कुछ पूछ रहे हो चिराग, लाइक मी, सुधीर, ओके। थोड़ा लेट हो जाता हूँ पढ़ने में। सर, प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक कैसा होगा, एंड जीडी डिबेट, पब्लिक स्पीकिंग ऑल्सो, ये सारी चीजें हम करेंगे चिराग। प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक कैसा होगा, कैसे होगा। जो प्रोनाउंसिएशन है और फोनेटिक है, एक ही बात है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि भाई फोनेटिक में आप बेसिक साउंड्स को कैप्चर करते हो, प्रोनाउंसिएशन में हर एक वर्ड का जो 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 प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो बोलते हो। तो इस चीज को हम फोनेटिक्स से स्टार्ट करके प्रोनाउंसिएशन तक लेके जाएंगे कि पहले तो आपकी साउंड पे काम किया जाएगा कि आप वो साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जब आप साउंड प्रोड्यूस करने लग जाते हो, क्योंकि हर कोई प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, आपकी स्ट्रक्चर एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, आपकी टंग का प्लेस होना चाहिए, आपके होठों का प्लेसमेंट सही होना चाहिए, तभी आप वो साउंड प्रोड्यूस कर पाते हो। उससे पहले नहीं हो पाता। तो वो चीजें, उस चीज में थोड़ा टाइम लगता है, उस चीज के लिए हम आपको ट्रेन करते हैं। देन यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दोज साउंड्स, तो आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर होता चला जाता है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो। फिर जैसे अवेयरनेस होती है, गोल सेट होता है, हालांकि ऑलरेडी हमने सेट कर दिया है, लेकिन प्रोसेस में बता रहा हूँ आपको कि ऐसे हम काम करते हैं प्रोनाउंसिएशन। ओके। फिर प्लान क्रिएशन की, आपको कैसे काम करना है। हालांकि ये सारी चीजें ऑलरेडी क्रिएटेड हैं गाइस, यू आर ऑलरेडी, वंस यू ज्वाइन द कम्युनिटी, you come into the system and you just follow it without using your head। कोई ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जस्ट जो जो दिया जाता है आप करते हो, चिल चिल करते हो, नो नो वेस्ट ऑफ एनर्जी। अकाउंटेबिलिटी आपकी प्रॉपर होती है, आप
से पूछा जाता है कि हाँ भाई काम हुआ है कि नहीं हुआ है, किया नहीं किया, और वो एक प्रॉपर गेमिफिकेशन है, प्रॉपर इंटरेस्टिंग होती हैं चीजें। और जो अकाउंटेबिलिटी की बात है, जब आप काम करते हो तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका भी हम सोल्यूशन निकालते हैं मिल बैठ के। फिर डेली एक्शन हम लेते हैं, जो मंथली गोल्स हैं उनको वीकली गोल्स में, वीकली जो गोल्स हैं उनको डेली गोल्स में हमने बांटा हुआ है, वो करते हैं। फिर प्रोग्रेस ट्रैकिंग, आई रिपीट द सेम सेंटेंस, इफ यू कांट ट्रैक इट यू कैन नॉट अचीव इट। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर पा रहे तो आप इंप्रूव भी नहीं कर पा रहे हो। तो प्रोग्रेस को हम आपकी ट्रैक करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। इंग्लिश को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड योर इनकम स्टोरी, ये चीजें आप समझते हो कि अगर आप ऑलरेडी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे हो क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती या प्रॉपरली बोल नहीं पाते, कोई ज्यादा फ्लुएंट बंदा मिल जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस और भी डाउन हो जाता है। तो इस चीज पे भी काम करते हैं। सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्चुअल में क्या है, इन पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर इनके लिए एक्सरसाइज है, और कैसे आप इन चीजों को बढ़ा सकते हो, वो प्रॉपर फ्रेमवर्क है। फिनिश द इयर्स ऑफ वर्क, अगर आप अपने आप तैयारी करते हो तो साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आई डोंट नो कितना टाइम लगता है, डिपेंडिंग ऑन योर अप्रोच, योर प्रैक्टिस, योर टाइम। लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये 90 डेज में पॉसिबल है। और ऑफर जो है हमारा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप हेल्प करना चाहते हो अपने आप की, to love and respect yourself, to feel and be equal to others, to master English, to earn more, give a better life to your family, join this community। क्योंकि टाइम बहुत कम है, लाइफ छोटी सी है, बहुत सारे काम करने हैं, नेटफ्लिक्स भी देखना है, और भी इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं नेटफ्लिक्स या फिर अमेजोन प्राइम पे। लाइफ भी देखनी है, पर्सनल लाइफ भी देखनी है, प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी है, खेलना भी है, हॉबीज भी है हमारी, बहुत सारे काम है। तो टाइम में जितना बच जाए उतना ही अच्छा है। कम्युनिटी है, लर्निंग कम्युनिटी, मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होती है। आप ट्रूली मोटिवेटेड रहते हो। ये थोड़ा सा पंच लाइन डाली है मैंने, लाइफ इज अ बिग गेम, एक्चुअल में बिग गेम ही है, और यू आर हियर टू डू बिग थिंग्स। अगर मानते हो तो यस यू आर हियर टू डू बिग थिंग, नहीं मानते तो यू कैन डू वॉट एवर यू आर डूइंग। लाइफ इज अ बिग गेम। और जो कोच, जिसके साथ कोच खड़ा हो जाता है एक, वो मतलब बहुत अच्छा हो जाता है लाइफ। आप एग्जाम्पल देख सकते हो कोचेस के कमाल क्या होते हैं। और वाई डू वी नीड कोचेज ओनली फॉर ओलंपिक्स एंड फॉर दीज इंटरनेशनल गेम्स? एक रियल लाइफ में छोटी छोटी चीजों के लिए भी तो कोच होने चाहिए। कोच और टीचर्स, ट्रेनर्स में डिफरेंस आप जानते हो। टीचर्स तो लैंग्वेज जो जो कोर्स पूरा कराते हैं वो टीचर्स होते हैं। ट्रेनर जो आपको ट्रेन करते हैं। कोच वो होता है जो आपकी जो कमियां हैं उन पे काम करता है। आप कर तो रहे हो, आप खेल रहे हो, लेकिन आपको कोच की क्यों जरूरत है? क्योंकि जो कमियां हैं उनको दूर नहीं कर पा रहे हो आप, वो कोच आपके साथ खड़ा हुआ जब आप उनको दूर कर पाओ, वरना वो जिंदगी भर बनी रहती है, तभी आप आगे बढ़ते हो। तो बेस्ट ऑफर तो ये है जी हमारा। बेस्ट ऑफर ट्रिप 9,999, 9,999, 90 डेज का चैलेंज है। इसमें कम्युनिटी मिलेगी आपको, लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी आपकी। और जो बेस्ट ऑफर मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है, आई कॉल इट, आई लव टू कॉल इट 4,999। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लेट मी नो, you can text me directly or you can just let me know over here, I have told you, or you can just do it right away. I can not give you this offer for long, like maybe 15 minutes or 12:45 I can give it to you. फिर उसके बाद वही 999 पे आ जाएगा। So if you think that you should join me and I can help you, I am worth joining, yes, you are welcome.
So let me know. Let's not waste time, yours and mine. We can join, or uh, I have already told you all the things. हाँ जी बेटा, थोड़ी देर में आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, आप नीचे जाओ, बंद कर दो. My kids have come upstairs. Okay, Chirag, let me one day. And Sudhir, you can also tell me if you are interested. And if you have face any problem, कोई चीज जो मैंने explain करी है उसमें understanding में कोई problem आ रही है, तो you can also tell me. I can explain it again. Sure, sure, sure. Chirag, Sudhir, thank you so much. So I love that. I really thank you for attending this workshop. I really loved your presence. I loved explaining the things to you. हाँ हाँ, चलो जाओ. How to pay installment? 4999, चिराग. इसको इंस्टॉलमेंट में करना चाहोगे आप? 4999, जस्ट 4999. अगर अभी भी इंस्टॉलमेंट की जरूरत है तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं, चलो तब बात करेंगे इस बारे में. ठीक है. टेल अबाउट दिस प्लीज सर, टेल अबाउट दिस प्लीज. क्या सुधीर फिर से बोलो, किसके बारे में सर? टेल अबाउट दिस प्लीज. Sudhir, I read that line. If I want to practice for 15 minutes speaking, then what should I speak? आप इंग्लिश को एक दिन में कितना टाइम दे सकते हो, ये बताओ पहले. इंग्लिश को एक दिन में कितना टाइम दे सकते हो? लोग जो कहते हैं ना 15 मिनट के लिए आप प्रैक्टिस करो, तो आप दे सकते हो. बिल्कुल सही बात है. 15 मिनट, कम से कम तो 15 मिनट. वो कम से कम की बात करते हैं, कम से कम 15 मिनट. लेकिन आप ये देखो, आप सिंपली प्रैक्टिकली आप सोच के देखो. आई टोल्ड यू अबाउट थिंकिंग इन इंग्लिश, टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश. आपको 15 मिनट नहीं दे रहे हैं, आपको सिर्फ हैबिट डालनी है. लैंग्वेज इज अ हैबिट. लैंग्वेज इज अ हैबिट. आप ये थोड़ा दिमाग में थोड़ा सोच के देखो इस स्टेटमेंट को मैं क्या बोल रहा हूँ. जब हैबिट का क्या मतलब होता है? अगर आपको कोई इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप हेजिटेट ना करें, आपके मुंह से ऑटोमेटिकली इंग्लिश निकले. आपने कोई वीडियो देखी, आपने कोई किसी से बात करी, तो थोड़ी देर बाद आपको ये याद ना रहे कि आपने हिंदी में बात करी थी, इंग्लिश में बात करी. तो ये लेवल होता है कि आपको ऑलरेडी आप हैबिचुअल हो गए हो इंग्लिश के. तो इट्स नॉट अबाउट 15 मिनट्स, इट्स नॉट अबाउट 45 मिनट्स, इट्स अबाउट हैबिट. आप इसकी हैबिट बनाओ. हैबिट कैसे बनेगी? जब आप अपने माइंड में इसको 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 प्राइमरी लैंग्वेज बनाओगे, अपनी माइंड की लैंग्वेज बनाओगे. जैसे जावा, C++, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होगी ना, माइंड की लैंग्वेज इंग्लिश को बना लो. यार ये टाइम डिफाइन मत करो. अब प्रैक्टिस के लिए ठीक है, आप टाइम डिफाइन कर लो, 15 मिनट, 45 मिनट दिन का जो भी है. लेकिन आप बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप यू स्टार्ट यू नो फंक्शनिंग इन इंग्लिश ओवर हियर. यहाँ पे इंग्लिश में फंक्शन करना शुरू कर दो. और बाकी कुछ चीजें हैं एक्चुअल में, राइटिंग है.
और भी चीजें हैं जो एकदम से सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। दिस इज व्हाई आई एम आस्किंग यू। 4999 कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। कम इन, ज्वाइन माय कम्युनिटी एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। क्लास में देखो यार, इस ये चीज ना, मतलब 4999 में कुछ, 4999 कुछ भी नहीं है। जो चीजें मैं दे रहा हूँ ना आप लोगों को, वो कुछ भी नहीं है। जस्ट बिकॉज आई एम स्टार्टिंग ये ऑनलाइन अपनी कम्युनिटी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये चीजें मैं 10,000 में बेचूंगा अभी, मेरा थोड़ा पिकअप होने के बाद, जो आपको मैं 4999 में दे रहा हूँ। और अभी भी आपको इतना डाउट हो रहा है तो ठीक है, प्रोबेबली आपने मेरी वर्थ ही नहीं देखी है, वर्थ ही नहीं समझ पाए हो आप। ये चीज बहुत आसान, मतलब बहुत आसान बन जाएंगी जब आप मेरे मेरे साथ आओगे। चलो मैं कुछ टिप्स भी दे दूं यहाँ पे, एक रामबाण हिला देता हूँ, आप करते हो, एक दो दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे दिन फिर वहीं पे आ जाओगे। इट्स नॉट अबाउट दैट। अगर किसी इंसान को आप बदलना चाहते हो, उसका इन्वायरमेंट बदलो। वो भले ही इंसान आप खुद हो या कोई और, जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसा इंसान हो जाता है। विल पावर काम नहीं करते। कितना भी सोच लो कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर दूंगा, मैं हो जाएगा, नहीं होता है भाई। इन्वायरमेंट बहुत पावरफुल चीज है। रीडिंग प्रैक्टिस कैसे होगी क्लास में और पर्सनल? पर्सनल ही होगी। डिपेंड करता है कि आप, आपकी रीडिंग, आप में अगर प्रॉब्लम है कि आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर हम पर्सनली डे टू डे डेली जो क्लास हुआ करेगी 90 डेज, 3 महीने तक, उसमें होगी प्रॉपरली। और रीडिंग तो काम ही इस तरह का है कि भाई रीडिंग पर्सनल ही होगी। पर्सनली मतलब क्लास के अंदर बाकी लोगों के साथ में। और रीडिंग करोगे तभी आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, क्योंकि सामने वाला कोई आपको बताने वाला होगा कि भाई इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस मत करो, ऐसे करो, ये वर्ड ऐसे नहीं बोला जाता, ऐसे बोला जाता है। और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन तभी सीखा जा सकता है जब कोई दूसरा बंदा आपको बताने वाला हो। चलो ऑल राइट गाइस, चिराग, सुधीर, लेट मी नो। मैं हार्डली 1 घंटे तक, चलो अगर आप कोई ये कहते हो 1 घंटे तक मैं इस चीज को मैं बना के रख सकता हूँ, मतलब ये ऑफर ओपन रख सकता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन 1 घंटे ज्यादा नहीं होगा। चिराग and सुधीर, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। सी यू सम अदर डे। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वेल एंड गुड, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक केयर। चलो बाय बाय।